Hello, good morning students. Chapter line and angle से next topic parallel lines and transversal line. ये ऑलरेडी हमने क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ाया भी है, फिर भी एक बार रिकॉल करते हैं. ठीक है. अभी any two lines not parallel, any two lines was A and B, another is C and D, not parallel, only two lines. Two lines intersect by a third line. Intersect by a third line, that is known as what? Transversal. If a line intersect two or more than two lines, the line is known as a transversal line. ठीक है. अगर दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन को कोई दूसरी तीसरी लाइन कट करती है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. सिर्फ ए बी एंड सी डी और नॉन पैरेलल पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल. देन व्हाट इज द फॉर्म? क्या फॉर्म होता है? यस, पहला क्या होता है? फर्स्ट बताओ. कोरेस्पोंडिंग एंगल. आपको याद है, मैं थोड़ा सा जल्दी नहीं करेगा. कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या फॉर्म होता है? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स. तो कोरेस्पोंडिंग सपोज दैट इज द 1, this is the 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suppose that is the 1, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, then angle 5, angle 6, angle 7, angle 8. So then when two lines, listen carefully, two lines not parallel intersect by a transversal line, then corresponding angles form. क्या बनता है? corresponding angles. तो कौन सा होगा यहाँ पे corresponding? angle 1. angle 1 का corresponding क्या होगा? angle 5. ठीक है. angle 2 का corresponding क्या होगा? corresponding of angle 2 angle 6. corresponding of angle 3 corresponding 7 and corresponding angle of 4 8. Clear है? corresponding means friend angle 7. याद आया कुछ? क्लास 7 में पढ़ाया corresponding angle. ठीक है. सेकेंड फॉर्म what? alternate angle. what? alternate angle. Alternate angle is two types. First is interior and second is exterior. तो इसको लिखते हैं हम alternate interior angle. Alternate interior angle. Which are is the alternate interior angle? See carefully. Angle 3 and angle 5. Angle 3 and angle 5 is a alternate interior angle. Comma second is what? Angle 4 and angle 6. You know interior and exterior? Very good. Inside between the two lines is known as interior. Line AB and line CD. Between the line AB and line CD, interior, and outside exterior. Okay, clear? Third, alternate. This is a recall only. Alternate exterior angle. Exterior. Alternate exterior angle.
Which angles are coming in the alternate extended angles? Angle 1 and angle 7. Angle 1 and angle 7 alternate extended angle. And second is what? Angle 2 and angle 8. Clear? Any doubt? Okay. The corresponding angles, alternate angles, and once more, what? What is what? Sum of two interior angles on the same side of a transversal line. Two interior angles, same side of the transversal line. That is a transversal line, same side, at the left, at the right. Left is what? 3 and 6. 3 and 6. And right is what? 4 and 5. Same side. Left side is 3 and 6. The right side is 4 and 5. But क्या होता है? Corresponding interior alternate, corresponding alternate complete. और क्या होता है last? On the same side, transversal line, make angles 4 and 5, and second is a 3 and 6. Now, when AB and CD not parallel and transversal PQ intersect this line, then forms corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles. And fourth, on the same side, interior angle is 4 and 5 and 3 and 6. Okay? Now comes to the topic. What is the topic? Parallel lines. What? Parallel lines. If AB and CD are parallel, what? Parallel. Then what will happen? Yes, that is the point. I erase and make parallel. That is A, B, C, D. That is the transversal. P, Q. This angle is 1, 2, 3. That is the 4. This one 5, 6, 7, and 8. Clear? Now AB and CD. AB parallel CD. Hello? And PQ is a transversal line. AB parallel CD and PQ is a transversal line. Then what? Just before not parallel, now parallel. You have already read in class 7 this one, which are will going continue. You read already. First, corresponding angles are what? Equal. Corresponding angles are equal. When two parallel lines intersect by a third means transversal line, then corresponding angles are equal. Means angle 1 is equal to angle 5, angle 2 equal to angle 6, angle 3 is equal to angle 7, and angle 4 is equal to angle 8. That is the corresponding angles. Clear? Any doubt? If doubt, then you ask later. Because you have already read in class 7.
Any doubt? Read class 7 books, otherwise you ask. Now comes alternate integral angles also equal. Means angle 3 is equal to angle 5, angle 4 is equal to angle 6. Okay? And alternate extra angle 1 is equal to angle 7 and angle 2 is equal to angle 8. Clear? Now fourth is what? Sum of two integral angles on the same side. Sum of two integral angles on the same side of transversal line is equal to 180 degree or supplementary. Means 3 plus 6 is equal to what? 180 degree. Angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. This is one parallel line and a transversal lines. Okay? Clear? Any doubt? Okay. If two lines are parallel, third line intersect, that is a transversal, these four cases will happen. Okay? Question asked directly, is angle 1 is equal to 60, then you find angle 5 is equal to what? That is 60. Why? Because that is the corresponding angles. अगर एंगल 1 60 डिग्री है, एंगल 5 भी कितना होगा? 60 होगा. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ऐसे. ठीक है, ये कर चुका है क्लास 7 में. नाउ अभी क्लास 9 में थोड़ा सा आपको थ्योरम भी पढ़ना है. थ्योरम थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, क्लास 9 में आ गया, 7 से 9 में आ गया, तो थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड किया है, बड़ा किया है, बढ़ाया है थोड़ा सा. तो ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी. दिस प्रॉपर्टी विल यूज इन द प्रॉब्लम. हाँ, अब पूछेगा ये चीज थ्योरम में, इफ सम ऑफ टू एंगल्स which are interior and the same side of the transversal line is 180, then prove what? AB and CD is parallel. Means ये given होगा ऐसे ही नॉर्मल, और आपको प्रूव करना है कि AB and CD क्या है? पैरेलल है. तो प्रॉपर्टी का यूज करेगा हम लोग. प्रॉपर्टी का क्या करेगा? यूज करके हम लोग प्रूव करेगा. तो इसी ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया आपका रिकॉल क्लास 7. अभी देखो आपके बुक में एक्सिम 6.3 दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? एक्सिम 6.3. एक्सिम 6.3. क्या है एक्सिम 6.3? इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, कट करता है टू पैरेलल लाइन, जैसे AB और CD पैरेलल है, ट्रांसवर्सल हमारा BQ है, देन ईच पेयर ऑफ कोरेस्पोंडिंग एंगल इज इक्वल. एक्सिम में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. एक्सिम इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. नो नीड टू प्रूफ. मींस कोरेस्पोंडिंग एंगल जो होता है क्या होता है? इक्वल होता है. यही एक्सिम 6.3. क्लियर? समझ में आया क्या? कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है कब? जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है. ठीक है? अभी जस्ट एक्सिम 6.4 देखो आप. जस्ट कन्वर्स ऑफ 6.3. क्या है इसका 6.3 का कन्वर्स? इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अगर कोई दो लाइन है, नॉट पैरेलल, गिवन नहीं पैरेलल, अगर दो लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो क्या होगा? क्या होगा? ठीक है? और उसका कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है. ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है,
ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर होता है तो AB और CD इज अ पैरेलल होगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर ये पैरेलल है, ये गिवन है, दैट इज द पैरेलल ट्रांसवर्सल ऑलरेडी गिवन पैरेलल, तो कह रहा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। 6.4 एक्सिम 6.4 पैरेलल नहीं गिवन है, पैरेलल नहीं है, ऐसे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, ये एंगल इसके इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग। अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये है 6.4 एक्सिम। तो एक्सिम यू नो ऑलरेडी, प्रूफ नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ, नो नीड टू प्रूफ, ठीक है। तो इस एक्सिम का हम यूज करेंगे और प्रूफ करेंगे थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2। अब देखो 6.2 थ्योरम क्या है, जल्दी लिख लो 6.2 थ्योरम। रीड कर लिया, प्रूफ कर सकते हो क्या आप लोग इसको, मैं कुछ थ्योरम प्रूफ कर रहा है, बाकी थ्योरम आप ट्राई कर सकते हो। एक्सिम का यूज करना है, जो एक्सिम दिया हुआ है वो यूज करके करना है, ठीक है। तो 6.2 देखो जरा क्या हो रहा है, 6.2 क्या है, गिवन, गिवन में आप उसका स्टेटमेंट राइट करेगा, गिवन में क्या लिखेगा, स्टेटमेंट, सॉरी स्टेटमेंट राइट करेगा। थ्योरम में क्या होता है स्टेटमेंट, देन आता है क्या गिवन। गिवन में क्या है, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसमें देखो, रीड करो। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस आर गिवन, टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस, सपोज मान लिया ये भी है CD, अब ये लिया AB और क्या है CD पैरेलल है, AB है CD पैरेलल है, ठीक है। टू पैरेलल लाइन AB है CD एंड अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल वर्सल PQ। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन में कौन सा PQ, ठीक है, हो जाओ तो नहीं है ना, वेरी गुड, PQ ले लिया। Then each pair of alternate interior angle is equal। क्या प्रूफ करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स गिवन हो गया आपको, ठीक है। प्रूफ थोड़ा नहीं करते एंगल्स का, इसको आप 1 2 3 ये हो जाएगा 4 5 6 7 और 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थोड़ा सा केयरफुली, अल्टरनेट एंगल कैसा है ना, अल्टरनेट और साथ में इंटीरियर, तो कौन सा एंगल, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये प्रूव करना है। एंगल 4 किसके इक्वल है, 6 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। ये हमें प्रूव करना है, जो थ्योरम 6.2 है। एक्सिम याद रखो, एक्सिम क्या हमारा, वेरी सिंपल, अगर दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। अगर किसी भी ऐसे दो लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। जस्ट उसका अपोजिट 6.4 एक्सिम। तो बहुत इजी है, एक्सिम का यूज करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्या प्रूफ, बहुत इजी प्रूफ है, आप भी कर सकते हो, अगर ट्राई करो तो बहुत इजी है, कर सकते हैं आप भी प्रूफ। करेक्ट, देखो हमें 4 और 6 इक्वल दिखाना है, 4 और 6 इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, क्या लिखते रहो जरा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा क्या, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, होगा ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा, वेरी सिंपल, वर्टिकली अपोजिट
एंगल, इसको लिख दूं क्या? पूरा लिखने की जरूरत है क्या हमें? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, कोई डाउट? वर्टिकली अपोजिट एंगल, हेलो, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा अब देखो, एंगल 4 किसके बोला? एंगल 2 के। अब बताओ, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होगा क्या? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा कि नहीं होगा? आप बताओ। होगा, क्यों होगा? एक्सिम हमारा 6.3 था। एक्सिम क्या है हमारा? 6.3 देखो अच्छे से क्या दिया हुआ है, आप लिखोगे नहीं एक्सिम 6.3, आप लिखोगे क्या एक्सिम 6.3, आप उसका स्टेटमेंट लिख देगा पूरा। टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या होता है? इक्वल। हमने एक्सिम लिख दिया, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेगा ब्रैकेट में, क्लोज कर देगा उसको, होगा। हम इसको 1 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं। जरा देखो आप, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं? 1 और 2 से बताओ। तो की जगह पे 6 लिख सकते हैं क्या? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। यही प्रूफ करना था, पहला फर्स्ट। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो जाओ, वेरी गुड। अभी सेकेंड भी कर देते हैं ताकि इजी रहेगा। सेम सिमिलरली अगर आप चाहो तो प्रूफ कर सकते थे। कैसे? एंगल 3 नाउ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों? वर्टिकली अपोजिट, सेम वर्टिकली अपोजिट लिख दूंगे, ठीक है? आप लिख लेना कंप्लीट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? 5, क्यों? कोरिस्पोंडिंग एंगल, कोरिस्पोंडिंग एंगल सीधे सीधे अच्छा रहेगा। कोरिस्पोंडिंग एंगल, नॉट पूरा एक्सिम नहीं, एक्सिम आपको तो समझ में आ गया तो सीधे लिख दो कोरिस्पोंडिंग एंगल बाय एक्सिम 6.3, आपको समझ में आ गया। इसको मान लिया 3 और दैट इज द 4, तो फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से क्या हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। देखो, हमने एक्सिम का यूज किया जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और उसका यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया कि अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। कोई डाउट है? देखो अच्छे से, अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ऐसे 6 पॉइंट थ्योरम जो हमारा 6.3 है, आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो मैं कल इसको करेगा 6.3, 6.4 और 6.5, ठीक है? ये कॉल में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया और मैं इसको कंप्लीट करने वाला था, तो कल इसको 6.3, 6.4 और 6.5 को फिनिश कर देंगे हम। तीनों थ्योरम जो है हम इसको प्रूव करेंगे कल, मे बी 6.6 भी कर दें। तो आपको अगर आता है तो ट्राई करना, ठीक है? अदरवाइज मैं इसको कल एक्सप्लेन कर देगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।